Hello and welcome. Welcome to the first learning session of a new chapter in Science 1, which is chapter number 1, Gravitation. Like always, whenever we begin a new chapter, we are going to discuss what is so special about this chapter and why should we study this chapter, right? So this chapter will give you answers to questions like why does everything fall downwards and not upwards or not sideways, or why does anything you throw upwards always comes back down. But answer to these questions you all already knew, right? It's because of something called as gravity. Everything will come back to Earth. Earth is pulling everything downwards. You all already knew all this. What is new that you're going to study in this chapter? So you'll get answers to questions like, say, for example, you go to Mount Everest. Will the gravity, Earth's gravity, there be more or less or be same? If you dig a very deep hole inside Earth and you go inside that hole, uh, will the gravity inside that hole be more, be less, or be equal to what it is on the surface of Earth? You'll get answers to such questions. Um, if I throw a ball upwards, is it going to leave Earth's atmosphere? The answer is no. We all know that. But what if I increase the speed? If I throw it very fast, maybe if I'm not throwing it with my hand, maybe I have a machine through which I'm throwing the ball upwards. Can I make it go outside Earth's atmosphere? And if yes, then how much velocity will I have to give it so that it leaves Earth's atmosphere? And also you will be able to put numbers to many of these answers, right? For example, अगर माउंट एवरेस्ट पे तुम्हारा ग्रेविटी चेंज हो रहा है अर्थ का तो कितना चेंज हो रहा है? अगर अगर मुझे एक बॉल इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर फेंकना है तो कितना फास्ट फेंकना पड़ेगा? एक एग्जैक्ट नंबर विल बी एबल टू calculate through this chapter. And finally, I would say, see, I know that mostly this chapter is used for, say, space related things, right? So if you want to send a satellite and if you want it to revolve around Earth, तो कितने स्पीड से ऊपर जाना चाहिए, फिर ऊपर जाने के बाद कौन से डायरेक्शन में, कौन से स्पीड में उसको घूमना चाहिए ताकि वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा. Why does moon rotate around Earth? Why does Earth rotate around, not rotate, revolve? Why does moon revolve around Earth? Why does Earth revolve around sun? You'll get answers to these questions, and it's mostly related to space, right? But the other aspect of this chapter is that it's a physics chapter, right? And physics is mostly about learning the laws of universe. If you believe in God and if you believe that this universe was created by God, then God has written a few rules for this universe. And in physics, you're trying to understand those rules. You're trying to uncover those rules. If you believe there is no God and if you believe there's just nature, then this nature has some rules. We don't know who has written those rules, or is it just random, or we just lucky. But there are some fixed rules, and when you try to understand those rules, when you try to unravel the mysteries of the universe, I think that gives a lot of joy, right? Because now you know something more about this universe that you live in. You know the rules now, so it gives you a little confidence in life, and you feel like you have some control over your life, right? Because you understand it a little bit better. 500 years back, if you go to the best scientists of the world at that time, 500 years back, and you ask them what is gravity, they wouldn't be able to answer that. If you ask them why does everything fall downwards, why don't they fall left side, right side, or satera क्यों गिरते नहीं है, they may not have the best answer to that. But now, 500 years later, we have a good answer to that, right? And now you people are what, 14 years, 15 years, 16 years, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को भी यूनिवर्स का इतना इंपॉर्टेंट लॉ पता है. सो आई थिंक that's very empowering कि अच्छा मुझे कुछ तो पता है इस यूनिवर्स के बारे में, and that gives you a lot of joy. It at least gives me a lot of joy, and hence I love studying physics, and hence I love teaching physics as well. And now, because you're in grade 10, you won't just know the laws. See, I see that most of young students or young people who are interested in universe, in space, in speed of light, for example, you'll just talk about laws and you don't actually do the mathematics. But unless and until you do the mathematics, you're not going to go ahead in it. Okay. So a great thing about this chapter in grade 10 is that you will be able to put numbers. Okay. तो कितना मास होगा तो कितना ग्रेविटी होगा, कितना पास में होगा या फिर कितना दूर होगा उससे कितना ग्रेविटी कम या ज्यादा होने वाला है.
you will be able to put numbers, and I think that's a great step forward. Unless and until you can put numbers, then there's no point in learning physics, right? So yeah, that's why this chapter is so interesting, and that's why we should study this chapter. Let's move on. Okay, so these are the topics we're going to cover today. First is gravitation, next is Newton's laws of motion, and the third one is Kepler's law. Hence, our objectives will be students will be able to recall terms and concepts related to the chapter learnt in previous grades. For example, Newton's laws of motions you'll have studied in 9th grade. So you should be able to recall them, revise them. You should be able to say Newton's laws of motions by yourself without seeing, without reading from somewhere. By the end of this learning session, you should be able to explain what is gravitation by the end of this learning session, and you should be able to state Kepler's laws of planetary motion, or you should be able to write them without seeing. Okay, so those will be your learning objectives for today. So let us begin with can you recall type of questions given on page number 1 of your science textbook. So here are your 3 questions. These are pretty easy questions, and all these things you'll have already learned in your previous grade. So what I'm going to do is I'm going to wait for 5 seconds, and I'm going to ask you to pause the video here, read the questions, and write the answers by yourself in your notebook, and then we will discuss the answers. And when you submit notes, and when I don't see cancellations, when I don't see additions to your original answer, I know that you are not pausing the video, and you'll only learn when you're pausing video and trying something by yourself. Okay, so do pause the video and write your answers first, and then you can enhance your answers when we discuss the answers in the next slide. Okay, so I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you read the questions and are ready with the answers. Now let us discuss the answers. The first question was, what are the effects of a force acting on an object? एक object पे अगर कोई force लग रहा है तो उसका क्या effect होगा? Okay. So if a force is applied on any object, the force applied on any object can cause displacement. That's the first thing which can happen. So again, let me bring in my famous water bottle in the picture. So if it is kept on my hand and if I apply some force, तो डिस्प्लेस हो सकता है, राइट? अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे फोर्स लगा दिया तो यहाँ से जाके वो यहाँ पे आ सकता है. तो उसने अपना पोजीशन चेंज किया, उस चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इज चेंज इन पोजीशन. तो इसका पोजीशन चेंज हो सकता है. एज द फर्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन. चेंज इन शेप एंड साइज. ऐसे सॉलिड है, फॉर एग्जांपल क्ले पे अगर तुम फोर्स लगा दोगे तो चपटा हो जाएगा, राइट? सो उसका शेप चेंज हो गया. साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज. अगर कोई गैस है, गैस को अगर तुमने कंप्रेस कर दिया तो उसका साइज छोटा हो गया. So that can happen when you apply a force. It can also change the direction of motion of an object. Okay. For example, when you play cricket में अगर एक बॉल आ रहा है तुम उसको बस हल्का सा कट मार दो तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और फिर बाद में फोर के लिए चला जाता है, राइट? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. तो बैट से एक्चुअली तुम बहुत हल्का सा फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से बॉल अगर एक डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन हैपन ड्यू टू force. Next, what are the types of force you know? So one is muscular force, muscles जो हमारा force बनाते हैं. Gravitational force we are going to study in detail in this chapter. Magnetic force, north pole of a magnet and south pole of a magnet will attract each other. Frictional force, तो दो चीज जब एक दूसरे पे रगड़ रहे हैं, okay, and two things in contact with each other are moving when they are in contact with each other, उसको frictional force बोलते हैं. कोई भी चीज रगड़ रही है एक दूसरे पे तब फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग ने स्कूल में क्लास में बहुत बार किया होगा. वो प्लास्टिक का स्केल ले लो, उसको बाल पे रगड़ना है, फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेके उसके ऊपर रखना है, फिर पेपर के टुकड़े अपने आप उस प्लास्टिक के स्केल पे टच होना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे. दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Next, forces can also be categorized into balanced and unbalanced. So if I again ask you the question, I am keeping this water bottle on my hand. तो इस बॉटल पे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? दैट्स माय क्वेश्चन. व्हेन आई कीप दिस वाटर बॉटल इन माय हैंड, इस बॉटल पे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? दैट्स माय क्वेश्चन. एंड इफ योर आंसर इज इस बॉटल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन योर आंसर इज सैडली रॉन्ग. ओके. सो व्हेन द बॉटल इज ऑन माय हैंड और वो मूव नहीं कर रहा है, फिर भी उस पे फोर्स लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से. सो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो नीचे जाना चाहिए, बट वो नीचे नहीं जा रहा है. व्हाई? बिकॉज
क्योंकि वो मेरे हाथ पे रखा है, मेरा हाथ भी एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, सो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है एंड मेरे हाथ से जो फोर्स आ रहा है वो अपवर्ड है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। समझो मेरा हाथ नहीं होता तो वो नीचे गिर जाता, तो जब नीचे गिर रहा तब उसपे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का, और उसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड। तुम ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो फोर्स को, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो हमें क्या पता है कि द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ, ऐसा फोर्स जो अर्थ अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स पे, ताकि इट कैन पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ, ताकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स व्हाट वी नो अबाउट gravitational force for now. Okay, and now after learning this chapter we'll have a better answer to this, we'll have a more complex, more accurate and a better answer to this question. Okay, so let us begin with gravitation. The phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. Question: why do we call Isaac Newton Sir? Isaac Newton को हम सर क्यों बुलाते हैं? If you know the answer, put that in the comment box, comments of this video. Okay, and if you don't know the answer, you can also search it on Google कि Isaac Newton को sir क्यों बोलते हैं, and if you find the answer, then you can explain the answer in the comments of this video in your own words. Okay, so it's an interesting question. Why is Isaac Newton called Sir Isaac Newton? So gravitation उसने discover किया था। एज द स्टोरी गोस, हमें स्टोरी पता है राइट, कि वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था, एप्पल के ट्री के नीचे बैठने के बाद एक एप्पल ट्री से गिर गया। सो जब वो एप्पल ट्री से नीचे गिर गया, न्यूटन सोचने लग गया कि सीधा नीचे क्यों गिरा, एक एंगल पे भी एक टेढ़ा भी नीचे गिर सकता था राइट, तो सीधा नीचे गिरने की वजह से वो टेढ़ा भी नीचे गिर सकता था इस तरफ, फिर दूसरी तरफ से टेढ़ा नीचे गिर सकता था, या फिर वैसा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों उड़ नहीं गया, सीधा नीचे ही क्यों आया? These questions started popping up in Newton's mind. And again, it's just a story, okay? हमें पता नहीं है exactly, क्योंकि वो किसी ने देखा नहीं है, प्लस न्यूटन ने ऐसा कहीं पे लिख के नहीं रखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, so we don't really know, बस एक स्टोरी है, we don't really know if it's true or not, but it's an interesting story. Okay, so बहुत सोचने के बाद what he came up with was, he came up with a conclusion, उसका आंसर उसको ये मिला कि अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बट ये तो ऑलरेडी पता था। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सेकंड पार्ट जो है आंसर का या फिर उसके कंक्लूजन का, वो काफी प्रोफाउंड है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो काफी नया है। ओके, कहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है वो? अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एप्पल सीधा क्यों गिरता है, ऐसा टेढ़ा क्यों नहीं गिरता? अगर समझो अर्थ पे अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे अर्थ है, ओके, और यहाँ पे एप्पल है, अगर वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो सीधा भी नीचे आ सकता है, ऐसा टेढ़ा भी नीचे आ सकता है, इस तरफ भी नीचे आ सकता है, तो टेढ़ा भी नीचे आ सकता है, बट हमेशा सीधा नीचे क्यों आता है? सो न्यूटन का आंसर क्या था? वो हमेशा सीधा नीचे इसीलिए आता है क्योंकि अर्थ का सेंटर उसके नीचे है, तो जहां पे भी अर्थ का सेंटर होगा उस डायरेक्शन में आएगा, वो हमेशा सीधा ही होता है। ओके, सो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो फोर्स सभी चीजों को खींच रहा है अर्थ की तरफ, वो फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ पे, अर्थ के डायरेक्शन में होता है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूटन्स कंक्लूजन। ओके, आफ्टर थिंकिंग द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus apple falls vertically down. I have already explained this. Okay, वो हमेशा सीधा नीचे क्यों गिरता है? क्यों सीधा नीचे के सीधा नीचे, अगर तुम आगे चले जाओगे नीचे, एक कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे और इमेजिन करोगे कि वो एप्पल सरफेस पे गिरने के बाद फिर भी अर्थ के नीचे जा रहा है, तो नीचे उसको सेंटर ऑफ द अर्थ मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो हमेशा सीधा नीचे गिरता है। ओके, सो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। Newton thought that if force of gravitation acts on apple or a tree at different heights from the surface of earth, can it also act on objects at even greater heights? Okay, तो अगर समझो ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस के बस थोड़े से ऊपर अगर एक एप्पल होगा वो नीचे गिर जाएगा। अगर समझो एक बिल्डिंग पे चले जाओ, बिल्डिंग से अगर तुम एक एप्पल गिरा दोगे फिर भी वो नीचे आएगा।
समझो तुम एक प्लेन पे चले जाओ और प्लेन से तुमने एक एप्पल नीचे गिराया, फिर भी वो नीचे की तरफ ही आएगा. सो अलग अलग हाइट्स पे ग्रेविटी फील हो रही है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, राइट? दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग. Gravitation acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth. कोई भी हाइट पे हो जाए सरफेस ऑफ द अर्थ के, ग्रेविटी उस हाइट पे एक्ट कर रही है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा न्यूटन ने, कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट्स? तो और ऊंचा अगर कोई चीज होगी तो उस पर भी ग्रेविटी एक्ट करेगा क्या? जो अर्थ से काफी दूर है उस पर भी ग्रेविटी एक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल मून. मून तो अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर है, राइट? यहाँ पे इस फोटो में काफी पास में दिखाया, ओके, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा दूर है, ओके. सो मून जो बहुत ज्यादा दूर है अर्थ के सरफेस से, उस पर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा क्या? दैट इज व्हाट न्यूटन स्टार्टेड थिंकिंग. उसके बाद उसके आगे और क्या सवाल पूछा न्यूटन ने खुद से, कैन इट एक्ट ऑन इवन फादर ऑब्जेक्ट्स लाइक अदर प्लैनेट्स एंड द सन? सो अर्थ मार्स को भी ग्रेविटी से खींच सकता है क्या? अर्थ वीनस को भी ग्रेविटी से खींच सकता है क्या? अर्थ सन को भी ग्रेविटी से खींच सकता है क्या? These questions he started asking, right? And the answer, as we know, is yes. Okay, ये जो moon है, moon is attracted towards earth because of earth's gravitational force. Mars is attracted towards earth due to earth's gravitational force. And how does that actually happen? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, that we'll see further in our next learning session. But the simple answer is yes. कोई भी हाइट पे होने दो अर्थ के सरफेस से, और कोई भी चीज होने दो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी और उसको अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी. दैट्स द सिंपल आंसर. एंड व्हाट यू मस्ट हैव नोटिस्ड इज न्यूटन को ये सब कैसे पता चल रहा है, आंसर्स कहाँ से मिल रहा है? इट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस. वो खुद को काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है और खुद को क्वेश्चंस पूछ पूछ के वो आंसर तक पहुंच रहा है. सिमिलर टू आइंस्टाइन. आइंस्टाइन इज फेमस फॉर हैविंग थॉट एक्सपेरिमेंट्स. तो बस एक चेयर पे बैठ जाता था आइंस्टाइन और अपनी आंखें बंद करके चीजें इमेजिन करना शुरू कर देता था, ओके. सो अगर समझो मैं लिफ्ट में हूँ और लिफ्ट की वायर जो है किसी ने ऊपर से काट दी, और तो मैं कौन सा फोर्स अप्लाई फील करूंगा? तो ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स आइंस्टाइन भी करता था और उसमें सवाल पूछ पूछ के टू कम टू न्यू थियरीज, एंड द सेम थिंग वाज डन बाय न्यूटन. सो फिजिक्स इज लॉट अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग वेरी गुड specific questions. The better questions you ask, the more specific questions you ask, the better you will get at physics, right? And it's also applicable in all other walks of life also. If you're a businessman, if you know what questions to ask correctly, what specific questions you must be thinking about, that will help you in your business. So this method of getting new ideas, it applies to all different walks of lives, okay. Next, what are Newton's laws of motion? Again, it's a can you recall type of question on page number 1. So again, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and write down whatever laws of motions of Newton that you remember. Okay. And then we'll come back and discuss the correct answers. Okay, I hope you pause the video and have written at least one law that you remember of Newton. Okay. And again, as I said, I should see some cancellations in your notes when you submit notes. I should see some corrections. I should see some enhancement in your answers. One, first when you write by yourself, and then when you actually copy it from my slides. That I should see when I check your notes. Okay. So here are the Newton's laws of motions. First law of motion: an object continues to remain at rest or in state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. Okay, समझो अगर कोई चीज रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है, तो वैसे ही रहेगी, मूव नहीं करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता. या फिर समझो एक चीज यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन यानी सेम वेलोसिटी है, तो अगर समझो 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो 10 किलोमीटर पर आ रही है और वो भी स्ट्रेट लाइन में है. तो अगर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो यूनिफॉर्म मोशन में है, 10 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल, सेम स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता. ओके, दैट्स योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Newton's second law is the most important law for us for this particular chapter. The rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force. Okay, so it's a little difficult to understand. I remember momentum.
the meaning of the word momentum and what it means, what that physical quantity is, it's very difficult to understand for many students. Okay, so if it's becoming difficult for you, all you need to remember is force is equal to mass into acceleration. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर तुम फोर्स लगा दोगे तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा. ओके, और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा. ओके, और उसका फॉर्मूला है force is equal to mass into acceleration. So you need not really go into detail कि momentum क्या होता है, change of momentum फिर mass into acceleration कैसे हो जाता है, so on and so forth. If you're interested, you can go and revise it from grade 9. But for now, even if you remember this formula, you'll be good. You'll be good to understand the remaining part of the chapter. The last law is the most famous law of Newton. I mean, not by famous, I mean इन तीनों law में से generally students को last law याद रहता है. Every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. तो अगर समझो मैंने वॉल को धक्का दिया एक फोर्स से, तो दैट इज माय एक्शन फोर्स, तो वॉल भी मुझे धक्का देगा, जो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, वो दोनों एक साथ होगा. जिस मोमेंट पे मैं वॉल को धक्का दूंगा सेम मोमेंट पे वॉल मुझे धक्का देगा, तो एक साथ होगा वो. सो दैट्स Newton's third law of motion. Every action has equal and opposite reaction. Okay, so these were Newton's three laws of motion. Okay, now we are moving on to Kepler's law. So planetary motion, what is the meaning of planetary motions? Planets कैसे move करते हैं? So they had been observed by astronomers since ancient times. बहुत पुराने जमाने से एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ते थे, planets का position, heavenly bodies, moon, sun, etc. इसको जो स्टडी करते थे उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते रहे. सो काफी पुराने टाइम से, काफी टाइम से एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं. Before Galileo, all observations of planets' positions were made with naked eyes. Naked मतलब क्या? नंगा. Okay. So नंगा आंख मतलब क्या? आंख पे तो हम कपड़े नहीं पहनते. So नंगे आंख यानी without any telescopes. Okay. So Galileo was the first person who started looking at planets with telescopes. उससे पहले कोई टेलीस्कोप यूज नहीं करता था, इसलिए उसको नेकेड आई बोला. ओके, डायरेक्टली आंखों से देख रहे हैं. सो गैलीलियो आके टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने लग गया, उसके पोजीशन को देखने लग गया. Before 16th century, by 16th century, what is 16th century? 1510, 1520, 50, 50, 50, 60, 50, 90, 1500 and जो कुछ भी. अभी कौन से में हम लोग? 2030, 2020. So this is the 21st century. तो 16th century बोला यानी एक नंबर कम कर दो. So 15, 1510, 1520, so on and so forth. So अभी हम 21st century में हैं. That they are talking about 16th century, यानी 500 साल पहले की बात कर रहे हैं वो लोग. ओके, सो 500 साल पहले तक a lot of data was available about planetary positions and motion. So 500 साल पहले तक काफी डेटा अवेलेबल था, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स बहुत पहले से प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट. सो काफी डेटा अवेलेबल था प्लैनेट्स के पोजीशन के बारे में, उसके मोशन के बारे में, कौन सा प्लैनेट कैसे मूव करता है. जोहानस केपलर, ओके, जोहानस केपलर studied these data. उसने क्या किया? उस डेटा को स्टडी करना शुरू कर दिया. He noticed that the motion of planets follows certain laws. तो सिर्फ वो डेटा को स्टडी करके उसने क्या नोटिस किया कि ये प्लैनेट्स जो है वो कोई लॉस फॉलो करते हैं जब वो मूव करते हैं, राइट. एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग, राइट, कि डेटा को देख के ऐसी कोई चीज पता लगाना. इफ आई वाज इन प्लेस ऑफ जोहानस केपलर, मुझे अगर 200 साल भी दे दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये डेटा को देख के मैं समझ सकता हूँ कि प्लैनेट्स इस लॉस को फॉलो कर रहे हैं. सो इट्स सच अ ग्रेट थिंग टू अचीव कि बस डेटा देख के वो बता रहा है कि प्लैनेट्स जो मूव हो रहे हो कौन से लॉस से मूव हो रहे हैं. एंड दोस लॉस हैव नेवर बीन डिसप्रूवन. वो आज भी काफी यूज किए जाते हैं एस्ट्रोनॉमी में, जब सैटेलाइट्स तुम सेंड करते हो वगैरह वगैरह में, तो आज भी काफी यूज किया जाता है केपलर्स के लॉ. तो इसने 500 साल पहले इन सब चीजों को स्टडी करके लॉज बताए थे. He stated 3 laws describing planetary motions. उसने तीन लॉज दिए थे. जैसे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, वैसे केपलर के 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं उसके 3 लॉज है. These laws are Kepler's laws, which are given in the upcoming slides. But before we actually start understanding Kepler's laws of planetary motion, we need to understand the shape called as ellipse. Okay, इसको कैसे बोलेंगे? Ellipse. Ellipse shape को समझना जरूरी है. Okay,
Why ellipse? Why do you need to understand this shape? So earlier what we teach in schools is sun is at the center and उसके around circle में हमारा अर्थ मूव कर रहा है. But is it actually moving in circle? Circle है ये और sun center में है क्या? The answer is no. It is not exactly a circle. Circle exact circle नहीं बनता, थोड़ा सा oval shape में होता है. तो exact shape क्या है? उसका scientific नाम है ellipse. Okay. So all these different kinds of shape you get from cones. Okay. So for example अगर ये cone है तुम्हारा, the so there are actually two cones, right? एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ. तो एक ऊपर की तरफ कोन होगा तो एक नीचे की तरफ कोन. So अगर कोन को तुम horizontally कट करोगे, okay, एकदम perfect horizontally कट करोगे, then you get the shape of circle. पर अगर समझो उसको तुमने टेढ़ा कट कर दिया, इस तरीके से कट कर लिया कोन को, तो the shape you will get is ellipse. Okay, oval की तरह दिखता है वो. So that shape is ellipse. और भी अलग अलग तरीके हैं कट करने के लिए. फॉर एग्जांपल इस तरीके से कट किया तो पैराबोला मिलता है, इस तरीके से कट किया तो हाइपरबोला मिल जाता है. ओके, बट दीज अदर शेप्स यू नीड नॉट worry about right now. If you take science in 11th 12th, you study in detail about parabola, you study in detail about hyperbola. Okay, parabola is related to quadratic equations. तो quadratic equations का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला होता है. ओके, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन मिल जाता है, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें पैराबोला मिलता है. और पैराबोला कैसे मिलता है? अगर तुम कोन को ऐसे कट कर दोगे तो पैराबोला मिल जाता है, अगर टेढ़ा कट करोगे तो एलिप्स मिलेगा. सो फॉर नाउ यू नीड टू नो अबाउट एलिप्स एंड हाउ डू यू गेट एलिप्स. व्हाट इफ यू वांट टू ड्रॉ एन एलिप्स? ये तो कोन को कट करके मिलता है, राइट? बट अगर तुम्हें ड्रॉ करना तो कैसे करोगे? सर्कल को ड्रॉ करना काफी इजी होता है. एक पॉइंट ले लो बीच में और उस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो एंड यू गेट अ सर्कल. How will you get an ellipse? So here is the trick to draw an ellipse. बीच में दो खीले ले लो और उस खीलों के अराउंड तुम्हें एक थ्रेड बनाना है. ओके, थ्रेड को प्लेस करना है और फिर तुम्हें ऐसे गोल गोल घुमाना है उस थ्रेड को स्ट्रेच करते हुए. थ्रेड हमेशा स्ट्रेच्ड होना चाहिए और उसके अराउंड तुम ये सर्कल बना दोगे तो एक्चुअल में सर्कल नहीं बनेगा, एलिप्स बन जाएगा. ओके, और ये जो पॉइंट्स है बीच में, ये दो पॉइंट्स है जहां पे खीले डाले हैं, उनको हम फोकस बोलते हैं. सो एलिप्स के दो फोकस होते हैं. फर्स्ट फोकस हियर पहले खीले पे, सेकंड फोकस हियर दूसरे खीले पे. So that's how you actually draw an ellipse in your notebooks if you want to, and these are known as focus. So now that we understand what is ellipse, now we can look at Kepler's laws of planetary motion. So first law is the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Okay, so foci is the plural form of focus. जैसे एक होगा तो हम रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा होगा तो रेडियाई बोलते हैं. सिमिलरली एक होगा तो फोकस बोलते हैं, एक से ज्यादा होगा तो फोकाई बोलते हैं. ओके, सो जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स है वो कैसे सर्कुलर नहीं है, सबको सर्कुलर लगता है बट वो सर्कुलर नहीं है, एलिप्स है. दिस शेप इज एलिप्स. ओके, एंड सन कहाँ पे होगा? सन एक फोकाई पे होगा. फोकाई का मतलब समझ गया, राइट? जो दो खीले लगाते हैं हम लोग ड्रॉ करने के लिए और वो दो खीलों पे फिर थ्रेड स्ट्रेच करके हम लोग वो एलिप्स बनाते हैं, राइट? सो उन दो खीलों पे जिस पॉइंट्स पे वो खीले लगे होते हैं उसको हम फोकस बोलते हैं. सो उन दो खीलों के पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे, किसी एक फोकाई पे तुम्हारा सन होगा. सो दैट्स योर फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal areas in equal intervals of time. This is such an interesting law and this is such a profound law कि सिर्फ डेटा पढ़ के, डेटा को एनालाइज करके उसने ये फिगर आउट कर लिया. इट्स अमेजिंग टू थिंक कि एक इंसान सिर्फ डेटा पढ़ के ये सब चीजें फिगर आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट ही एक्चुअली मींस. फर्स्ट, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. तो समझो यहाँ पे पॉइंट ए पे तुम्हारा प्लैनेट है. ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा प्लैनेट है, यहाँ पे सन है. लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन यानी क्या हो गया? एस ए या फिर ए एस बोलते हैं. ओके, सो ये लाइन हो गया मेरा ए एस. नाउ दिस प्लैनेट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट? ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा तुम्हारा प्लैनेट. सो अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाएगा तुम्हारा प्लैनेट. तो ये जो लाइन है, लाइन ए एस, ये स्वीप करेगा. स्वीप करना यानी झाड़ू मारना. ओके, स्वीप करना यानी झाड़ू मारना. तो ये जो ए एस पॉइंट है ये झाड़ू मार के कौन सा एरिया कवर कर रहा है? ये जो ब्लू वाला एरिया है जिसको एरिया नंबर 1 बोला है, उतना एरिया कवर कर रहा है, राइट? आई एम गोइंग टू repeat this one more time. Pay attention, focus completely on what I am explaining. First, line joining the planet and the sun. तो planet यहाँ पे point A पे है, sun यहाँ पे point S पे है. तुम दोनों को कौन सा लाइन ज्वाइन कर रहा है? लाइन AS.
स्वीप्स एरियाज, स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप करना यानी झाड़ू मारना। तो पॉइंट ए पे जो प्लेनेट है वो कुछ समय के बाद पॉइंट बी पे चला जाएगा। सो ये जो लाइन है ए एस, ये थोड़ा सा एरिया को कवर कर देगा। इफ दिस इज माई ए एस, तो ये क्योंकि प्लेनेट मूव कर रहा है, ये जो लाइन है थोड़ा सा एरिया स्वीप करेगा, कवर करेगा, झाड़ू मारेगा। ओके, इट इज गोइंग टू कवर सम एरिया। उस एरिया को वो लोग ने शेड कर दिया और उस एरिया को नंबर 1 बोला। कलर क्या दिया है? ब्लू कलर, राइट। सो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल टाइम इंटरवल्स में। ओके, सो पहले ए से बी गया, समझो एक घंटा नहीं है एक्चुअली, प्लानिट है, राइट। समझो एक महीना लग गया। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में एक महीना लग गया और इतना एरिया उसने स्वीप कर लिया। किसने स्वीप किया? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ओके, समझो फिर बाद में कुछ महीनों के बाद पॉइंट सी पे आ गया। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाने के लिए उसको एक और महीना लगा। सेम यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए एक महीना, पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने के लिए भी एक महीना। सेम टाइम इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बोला है, राइट। सो उतना ही टाइम लग गया सी से डी पे जाने के लिए। तो वापस ये जो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड अर्थ होगा सी एस एंड डी एस, ये जो एरिया कवर करेगा एक महीने में। ओके, वो जो लाइन है जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रहा है, वो जो लाइन है वो जितना एरिया कवर करेगा अगले एक महीने में, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ टू, एरिया नंबर 2 एंड एरिया नंबर 1 विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि ए टू बी जाने के लिए भी एक महीना लगा, सी टू डी जाने के लिए भी एक महीना लगा। सिमिलरली सेम केस, समझो कुछ महीनों के बाद ई पे पहुंच गया, ई से लेके एफ में जाने के लिए उसको एक महीना लगा, इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये जो एरिया स्वीप किया है ई एस और ई एफ के बीच में, वो इक्वल होगा एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 में। तो ये सारे जो एरियाज है सारे इक्वल हो जाएंगे अगर ए से बी जाने में उतना ही टाइम लगा जितना सी से डी जाने में लग गया, उतना ही टाइम लगा जितना ई से एफ जाने में लग गया। सो तुम्हें ये एरिया बड़ा लग रहा होगा, राइट। ये एरिया बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ये सबसे छोटा लग रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी चिपका हुआ एरिया, राइट। ऐसा लेफ्ट टू राइट देखो, ये तो काफी कम है। पर यहाँ पे जो सबसे कम लग रहा है लेफ्ट टू राइट देखो तो काफी ज्यादा है, तो बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये लगता छोटा है, सॉरी ये लगता बड़ा एरिया है, बट ये एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3 सब इक्वल है। ओके, ए बी का लेंथ ज्यादा है, बट यहाँ पे जो एरिया है लेफ्ट टू राइट वो कम है। सिमिलरली ई एफ, ये जो लेंथ है वो काफी छोटा है, बट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देखो तो काफी एरिया उसमें भरा हुआ है। So area number 1, area number 2, area number 3 is equal. Okay, and that's what Kepler found out, and he stated his second law. Line joining planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. Okay, that's his second law. Again, it's an interesting thing, or it's such you feel so much respect for a person जिसने सिर्फ डेटा को स्टडी करके एनालाइज करके इतना सब फिगर आउट कर लिया, राइट। ये अभी समझने भी कितना मुश्किल हो रहा है कि अच्छा ऐसे लाइन होगा, वो लाइन एरिया को स्वीप करेगा, तो इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करेगा। ये सोचने में समझने में भी कितना समय लगता है हमें, उसने वो डेटा देख के एनालाइज करके फिगर आउट कर लिया। वेरी स्मार्ट पर्सन। नेक्स्ट एंड द लास्ट थर्ड लॉ, the square of its period of revolution around the sun। period of revolution around the sun यानी सन का एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है। तो समझो सन का एक चक्कर काटने के लिए एक साल लगता है, so that's your period of revolution। उसका square is directly proportional। okay, so here you can see t is your period of revolution। सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, उसका स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो टी स्क्वायर लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव रिटन ए, यहाँ पे ए लिखा है, ए इज रॉन्ग। ओके, सो मेक दिस करेक्शन इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे ए के यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल दो। सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of mean distance of a planet from the sun। so mean distance of a planet from the sun क्यों बोला है? so if you go back to the previous slide, यहाँ पे जो डिस्टेंस है प्लैनेट और अर्थ का, यहाँ पे जो डिस्टेंस है प्लैनेट अर्थ का, यहाँ पे जो डिस्टेंस है प्लैनेट अर्थ का, प्लैनेट और अर्थ के बीच में, वो हमेशा चेंज हो रहा है, राइट। कभी भी इक्वल नहीं रह रहा। तो यहाँ पे प्लैनेट काफी पास है सन के, यहाँ प्लैनेट काफी दूर है सन के, यहाँ पे प्लैनेट बहुत ही ज्यादा दूर है सन के। सो उन सबका मीन ले लो। ओके, सबको ऐड करके कितने नंबर्स ऐड किए उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड मीन, राइट। सो एवरेज जो डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में,
उसका क्यूब ले लो. ओके, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. एवरेज प्लैनेट और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका क्यूब ले लो. सो दैट्स योर केप्लर्स थर्ड लॉ. तो ये जो लंबा सा सेंटेंस बोला उसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे, राइट. स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर कर लिया. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, उसको टी ले लिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल दिया. क्यूब ऑफ, तो यहाँ पे क्यूब लिख दिया. मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, जिसको हमने आर ले लिया. ओके, सो इस सेकेंड लाइन में बस इसको इसके टर्म्स एक्सप्लेन किए. फॉर एग्जांपल आर को एवरेज डिस्टेंस ले लिया प्लैनेट और सन के बीच में, टी को पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ले लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, राइट. एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा. तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे अगर इक्वल टू साइन डाल दिया तो आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय के आ जाएगा. तो आर क्यूब अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो नीचे आ जाएगा, राइट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन मोर टाइम. आई थॉट थिंक आई वेंट अ लिटिल फास्ट. ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना होगा तो तुम इक्वल टू लिख दोगे, बट आर के बाजू में के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट, राइट. तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब इंटू के. ओके, अभी आर क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो आर क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी एक के था, कांस्टेंट था, तो यही राइट साइड में लिखा है. ओके, so that's the third law of Kepler. So these are the three laws of Kepler. Okay, Kepler obtained these laws simply from the study of position of planets obtained by regular observations. तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया केपलर ने. उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो नॉर्मली थे, ऐसा भी नहीं कि कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज किया वगैरह वगैरह. नॉर्मल जो बाकी लोग, बाकी साइंटिस्ट, बाकी एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके पोजिशन को स्टडी कर रहे थे, उनको स्टडी करके ऑब्जर्व करके उसने ये तीनों लॉस बता दिए जो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, राइट. दीज आर नॉट इजी लॉस, ये समझने के लिए काफी समय लगता है. तो उसने वो ऐसे बना दिए सिर्फ नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को स्टडी करके. He had no explanation as to why planets obey these laws. So if you went and asked Kepler कि ऐसे laws क्यों follow करते हैं planets, he had no answer to that. Okay, so उसके पास explanation नहीं था कोई. But the contribution is huge. Why? Because these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. क्योंकि Kepler's law को यूज करके न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से बना पाया, राइट. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ केपलर्स लॉ. अगर समझो केपलर नहीं होता तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बना पाता. तो और आज जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, कॉल्स करते हैं, वो नहीं हो पाता अगर सैटेलाइट्स नहीं है. सैटेलाइट्स इसलिए वजह से क्योंकि न्यूटन ने अपने समय पे ग्रेविटेशन के लॉस फॉर्मुलेट किए थे. न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉस कैसे फॉर्मुलेट किए, क्योंकि उसके पास केपलर्स के लॉ थे. It's all interrelated. So everyone's contribution is important, क्योंकि एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को यूज करके दूसरा साइंटिस्ट और उसको एक्सपैंड करता है. So every scientist's contribution is very important. Okay, so that is it. There's a last use your brain power type of question given on page number 4. If area ESF यहाँ पे है, okay, ESF, तो ये एरिया नंबर 3, ये फिगर 1.4, ये फिगर है 1.4, इज इक्वल टू एरिया ASB यहाँ पे. तो बोल रहा है कि एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 3 अगर इक्वल होगा तो तुम EF के बारे में क्या इन्फर कर सकते हो. इन्फर यानी कंक्लूड. ओके, इन्फरेंस यानी कंक्लूजन. सो व्हाट विल यू इन्फर अबाउट EF के बारे में तुम क्या बता सकते हो. सो आई विल गिव यू अ हिंट. ओके, EF और AB के बारे में क्या बता सकते हो. सो नॉट जस्ट EF, थिंक अबाउट व्हाट कैन यू टेल अबाउट EF एंड AB. अगर एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 3 इक्वल है तो AB और EF के बारे में तुम क्या सोच सकते हो. आई गिव यू ऑल 10 seconds to think about it. Okay, dogs are busy barking. I hope you all are busy thinking about the answer. Okay, so if you are thinking, the first thought which comes in your mind is अगर ये एरिया इक्वल है, एरिया 1 एंड एरिया 3 इज इक्वल, तो AB और EF इक्वल होगा, राइट. बट दे क्लियरली नॉट इक्वल. दिख रहा है डायग्राम में क्यों इक्वल नहीं है. AB बड़ा है एंड EF छोटा है, बट एरिया 1 और एरिया 3 इक्वल है. बट हमने केपलर्स सेकेंड लॉ पढ़ा है, राइट, कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करता है, इट स्वीप्स, कवर करता है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो अगर इक्वल एरिया कवर के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
यानी अगर ये दोनों एरियाज इक्वल है, यानी ये जो टाइम लगा इस एरिया को कवर करने के लिए वो टाइम इक्वल है, तो प्लैनेट ए को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए जितना समय लगा, सेम टाइम पॉइंट ई से पॉइंट एफ में जाने में लगा होगा. That's your conclusion about EF. Okay, let us see how you will write the answer. You will say, according to Kepler's second law, if area ESF is equal to area ASB, then AB and EF are distances covered by planet in the same time. ये जो AB डिस्टेंस और EF डिस्टेंस है, इस प्लेनेट ने सेम टाइम में उतना डिस्टेंस कवर किया होगा क्योंकि उन दोनों ने इक्वल एरिया स्वीप किया. Okay, so that's your answer to this question. So that is it for this learning session. Just check whether you've accomplished today's learning objectives or not. Can you tell me the 3 laws of Newton? Can you tell me 3 Newton's laws of motion? If yes, then you have accomplished today's first learning objective. Can you explain what is gravitation? If yes, then you have accomplished today's second learning objective. Can you state Kepler's 3 laws of planetary motion? If yes, then you have achieved today's third learning objective. Okay, so just check whether you have achieved today's learning objective or not. If you haven't achieved any of these learning objectives, you might want to relook, maybe reread the textbook, read the chapter in the textbook, given in the textbook. Maybe you want to go and watch a few parts of the video again, or maybe you want to go and search on Google. Maybe you want to ask your friends, maybe you want to ask me doubts, for example. So just check whether you have accomplished today's learning objective, and if you haven't, what are you going to do about it? And that is it. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next learning session. Okay, till then, bye and